فیصل آباد جرائم کی دھرتی بن گئی۔ ڈاکوؤں کے جھنڈ آباد ملزمان نے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو اغوا کر لیا۔ پولیس روایتی انداز میں لواحقین کو طفل تسلیاں دینے لگی۔ مزید جانتے ہیں طیب مقبول کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد اغوا۔ تھانہ صدر میں مغویوں کے رشتہ دار محمد نواز کی مدعیت میں نامعلوم اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ مدعی کے مطابق بھتیجا مجاہد اور خاندان کے دیگر مرد و خواتین اور بچے فوتگی پر گئے لیکن وہاں نہیں پہنچے، موبائل فون بھی بند۔ پولیس نے اغوا کی دفعات کے تحت کارروائی کر کے مغویان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق لاپتہ ہونے والے تمام افراد بھٹا پر کام کرتے تھے۔ اس کے اغوا کے تمام حقائق جلد منظر عام پر لانے کا عندیہ۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ تو دوسری جانب بھارت کی طرح پاکستان بھی انڈیا میں کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نیا فارمولا سامنے آ گیا، جس کے تحت بھارت دبئی میں میچز کھیلے گا۔ پاکستان بھی بھارت میں کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلے گا۔ نیا فارمولا چیمپئنز ٹرافی سے لاگو ہوگا اور اگلے 3 سال تک رہے گا۔ آئی سی سی نے پارٹنرشپ فارمولے پر غور شروع کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول اور وینیوز کا معاملہ آج یا کل میں حل ہونے کی امید ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر ڈیڈ لاک ووٹنگ کے مرحلے سے پہلے ختم ہونے کے امکانات روشن۔ پرابلم کریٹر بھارت کی جانب سے پیدا شدہ صورتحال میں چیئرمین پی سی بی نے سولوشن نکال لیا۔ برابری کی بنیاد پر 3 سالہ پارٹنرشپ فارمولا بنا کر آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ بھارت کی طرح پاکستان بھی انڈیا میں کوئی آئی سی سی ٹورنامنٹ نہیں کھیلے گا۔ پارٹنرشپ فارمولے کے تحت پاکستان اور بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ایونٹس میں دونوں ٹیمیں باہمی میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلیں گی۔ نیا فارمولا صرف چیمپئنز ٹرافی کی حد تک لاگو نہیں ہوگا بلکہ اگلے 3 سال تک آئی سی سی کے تمام ایونٹس کے لیے ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بھارتی بورڈ نے پاکستان کے فارمولے پر اتفاق کیا تو معاملہ ووٹنگ پر نہیں جائے گا اور چیمپئنز ٹرافی سے اس فارمولے کا آغاز ہو جائے گا۔ فارمولے سے بورڈ ممبرز کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے پارٹنرشپ فارمولے کو ہوسٹ ایگریمنٹ کا حصہ بنانے کی شرط بھی رکھ دی ہے۔ فارمولے کا مقصد پاکستان کی جانب سے قانونی کارروائی سے بچنا ہے۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے غریب عوام پر حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ حکمرانوں کی بے حسی پر صارفین پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی جڑ ہے، پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی کا شکار ہیں، مزید بوجھ کیسے برداشت کریں؟ حکومت غریب طبقے پر ستم نہ ڈھائے اور اضافہ واپس لے۔ حکومت نے مہنگائی میں پسے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ اس کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے لیٹر مقرر کی گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 48 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 62 پیسے فی لیٹر کی معمولی کمی کی گئی۔ لائٹ ڈیزل 151 روپے 73 پیسے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 164 روپے 98 پیسے فی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آباد کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسرت کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے دالیں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء مزید مہنگی، جبکہ کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ غریب کو مزید غربت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ غریب آدمی اگے مریا پیا وا تے ہن پیٹرول فੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ، ਕਦੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ, ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ نہیں۔ ان کے باسیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سبزیاں پہلے ہی مہنگی ہیں، اب مزید قیمت بڑھ جائے گی، اتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے پوری نہیں پڑتی۔ 3 روپے دے کچھ پیسے مہنگا کر دیتا نے، غریب بندہ کی کرے گا؟ تنخواہ پوری نہیں پہنتی، سبزیاں تو مہنگیاں نے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ حکومت نے مہربانی کر کے کنٹرول کیا جائے۔ پیٹرول پہلے بہت مہنگا تھا اور مہنگا ہو گیا، پہلے بائک میں بہت مشکل سے ڈلواتے تھے۔ حکومت سے گزارش ہے پیٹرول کا ریٹ کم کیا جائے۔ احمد پور سیال کے شہری بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی نے جینا محال کر دیا، مزید بوجھ کیسے برداشت کریں گے؟ دوسری بار مسلسل یہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پورے پاکستان میں مہنگائی بڑھ چکی ہے اور غریب عوام کا جینا محال ہو گیا، لہذا حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی اچھا سوچے، غریب کے بارے میں سوچے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کے دام میں اضافہ مہنگائی کی جڑ، اب ضروریات زندگی دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوں گی۔ حکومت مہربانی کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ایک ہفتے کے دوران موسمی سبزیوں کی قیمتوں میں رد و بدل دیکھا گیا ہے۔ قیمتیں دکانوں پر پڑی ریٹ لسٹوں کے بالکل برعکس۔ مہنگائی نے گوشت کھانا تو مشکل بنا ہی دیا تھا، اب دھیرے دھیرے سبزی بھی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ فیصل آباد ڈویژن میں سرکاری نرخوں پر سبزی، سبز مسالہ جات اور پھل ملنا خواب بن کر رہ گیا۔
इंतजामिया के लिए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद चैलेंज बन गया। फैसलाबाद में आलू एक हफ्ते में 26 रुपए सस्ते होकर 94 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 18 रुपए महंगा 150 रुपए में बिकता रहा। टमाटर 35 रुपए सस्ते हुए। सरकारी कीमत 135 रुपए, बाजार में 180 रुपए किलो में दस्तयाब रहा। फूल गोभी 10 रुपए किलो सस्ती हुई, 70 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए बिकती रही। मटर बगैर रद्दोबदल के सरकारी कीमत 200 पर बरकरार, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो फरोख्त। करेला एक हफ्ते में 30 रुपए किलो महंगा हुआ। सरकारी कीमत 135 रुपए, बाजार में 140 रुपए किलो बेचा गया। जंग एक हफ्ते में फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल देखने में आया। चिकन 20 रुपए सस्ता, नर्क 448 रुपए पर आ गए। अंडे 5 रुपए के इजाफे के बाद 350 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए। मछली 520 रुपए किलो से 640 रुपए किलो बिकती रही। नए आलू की कीमत में 39 रुपए कमी, अदरक 50 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो, मटर 110 रुपए सस्ते होकर 220, सब्ज मिर्च 20 रुपए कमी के बाद 110 रुपए किलो, अनार 20 रुपए महंगा होकर 320 रुपए किलो बिकता रहा। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपए इजाफे से 360 रुपए, मौसमी 20 रुपए महंगी होकर 120 रुपए में दस्तयाब। में एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और सब्ज मसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। नमकीन आलू की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, कीमत 94 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 120 रुपए फी किलो बिकता रहा। अदरक 60 रुपए फी किलो कमी से 390 रुपए फी किलो मुकर्रर। लहसुन 30 रुपए सस्ता, नई कीमत 640, जबकि 700 रुपए में दस्तयाब। सब्ज मिर्च 35 रुपए सस्ती, 85 रुपए फी किलो मुकर्रर। टमाटर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 40 रुपए सस्ते होकर नई कीमत 135 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट 200 रुपए। बैंगन 20 रुपए कमी से 55, शिमला मिर्च 60 रुपए सस्ती 160 रुपए, मटर 20 रुपए कमी से 180, कद्दू 15 रुपए महंगा 85 रुपए बिकता रहा। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। आलू 41 रुपए कमी के बाद 94 रुपए फी किलो, टमाटर 50 रुपए कमी के बाद 130 बिकता रहा। प्याज 15 रुपए सस्ते 125, लहसुन 10 रुपए कमी के बाद 650, अदरक 80 रुपए सस्ती 400 रुपए, सब्ज मिर्च की कीमत में 25 रुपए कमी 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मटर 50 रुपए सस्ते 190, केला 10 रुपए कमी के बाद 115 रुपए दर्जन, अनार 20 रुपए इजाफे के बाद 350 किलो मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त में लाखों रुपए टैक्स छूट हासिल कर सकेंगे। तमाम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को मामला एक ही रोज में निपटाने का हुक्म है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ देने का फैसला। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में छूट का तरीक़ाकार वाज़े कर दिया गया। जायदादों की खरीदारी पर 236 के और 236C के रिफंड्स के लिए पाकिस्तानी आने की शर्त खत्म कर दी गई। छूट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी आरजी PSID कोड जनरेट करके मुतल्लिका चीफ कमिश्नर IR को ईमेल भेजेंगे। बाद मुतल्लिका कमिश्नर IR इसकी नाइकोप या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का स्टेटस चेक करने के बाद बाकायदा मंजूरी देगा। कमिश्नर की मंजूरी के फौरी बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर लाखों रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकेंगे। टैक्सों के रिफंड के लिए वफाकी हुकूमत मोहतसिब ने भी FBR को मुतअद्दिद बार हिदायत जारी कर दी थी। तमाम चीफ कमिश्नरान लैंड रेवेन्यू को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फैसला एक रोज में करने का हुक्म जारी कर दिया गया। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को एक रोज में फैसला करने से मुतल्लिक खुसूसी मरासला भी इरसाल किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कानून 2023 में तरमीम की गई। प्लास्टिक की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त एक्शन होगा। 10 दिसंबर से क्रैकडाउन का हुक्म जारी। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माने आयद, जबकि जगह सील और मवाद जब्त किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कानून 2023 में तरमीम कर दी। सूबे के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम की जाएंगी। कमेटी में 12 महकमों के अफसरान शामिल किए जाएंगे, जबकि मुतल्लिका जिले का डिप्टी कमिश्नर कमेटी चेयरपर्सन होगा। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस में रद्दोबदल कर दिया गया। कमेटी शॉपिंग बैग बनाने वालों को कवानीन के तहत मुआवनत फराहम करने सिंगल यूज प्लास्टिक के कवानीन में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज 10 दिसंबर से होगा। EPA ने मीडिया मुहिम और अवामी आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी। DC और DPOs के साथ मौसर नफाज के लिए मीटिंग्स का हुक्म। तमाम जिली इंतजामिया और पुलिस को क्रैकडाउन के लिए मुकम्मल ताउन की हिदायत भी दी। 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे के लिए 9 दिसंबर तक आवाम को मोहलत दी गई है। पंजाब हुकूमत का क्रिसमस पर मुस्तहिक मसीह खानदानों में खुशियां बांटने के लिए बड़ा इकदाम। मजहबी त्यौहार पर ग्रांट 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का फैसला। 10,000 खानदानों में फी खानदान 15,000 की इमदादी रकम तकसीम की जाएगी।
पंजाब हुकूमत का क्रिसमस से कबल मुस्तहिक मसीह खानदानों के लिए 15 करोड़ क्रिसमस ग्रांट देने का फैसला। क्रिसमस ग्रांट 5 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी गई। क्रिसमस ग्रांट से 10,000 मुस्तहिक मसीह खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जिली इंतजामिया को मुस्तहिक मसीह खानदानों को क्रिसमस ग्रांट की फराहमी के जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। क्रिसमस ग्रांट की मद में 15,000 फी खानदान तकसीम होंगे। मुतल्लिका इजला की जानिब से तस्दीक के बाद डेटा पंजाब काबीना को अरसाल कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद ग्रांट तकसीम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ईस्टर के मौके पर 10,000 खानदानों में 5,000 फी खानदान तकसीम किए। जिला कचहरी फैसलाबाद के एतराफ में बोगस स्टाम्प फरोश मुतहर्रिक हो गए हैं। जाली स्टाम्प पेपर तैयार करके खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया। सब रजिस्ट्रार अक्सा एजाज का जलसाजों के खिलाफ ऑपरेशन, मुल्जिम उमैर धर लिया गया। दीगर 18 साथी फरार होने में कामयाब। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके भगोड़ों की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। जिला कचहरी के अतराफ में बोगस स्टाम्प फरोख्त किए जाने का मामला सामने आ गया। सब रजिस्ट्रार अक्सा एजाज ने ऑपरेशन कराकर जैली स्टाम्प फरोश गिरफ्तार करा दिया। थाना कोतवाली में 19 जेलसाजों के खिलाफ अक्सा एजाज की मदईयत में मुकदमा भी दर्ज किया गया। सब रजिस्ट्रार अक्सा के मुताबिक सर्कुलर रोड पर उमैर समेत 19 अफराद जैली स्टाम्प फरोख्त कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों, फेस्को और एक्साइज के एहलकारों की मिली भगत से जैली स्टाम्प फरोख्त होते हैं। जैली स्टाम्प बोगस वेबसाइट के जरिए तैयार करके सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। कोतवाली पुलिस ने फरार होने वाले 18 जालसाजों की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग दिजी चौक की तोसी का काम बंद, चौक की रिमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग न हो सकी। खंबे भी जूं के तू चौक की तोसी का मकसद ही पूरा न हो सका। दिजी चौक पर टफ्टाइल लगना भी ख्वाब बन गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमेटी की नाकस हिकमतें अमली। रेल बाजार में मुतअद्दिद गटरों के ढक्कन गायब। खुले मेन होल से हादसा के खतरा मंडलाने लगे। ताजरों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से सूरत पर नोटिस लेने का मुतालबा। कि ये मेन बाजार ये गली है ना, ये आपदा वाली गली के सामने आप निगाह, आप कैमरा मैन आपका निगाह डाले, ये रेल बाजार आ जाता है। ये रेल बाजार के अंदर नहीं है। टांगे वाला अड्डा देख लें, मच्छी बाजार देख लें, खितियाला बाजार देख लें, दज्जी शाह रोड देख लें, हर जगह यही पोजीशन है। दज्जी चौक की तोसी का मंसूबा भी लटक गया। चौक की रीमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग पर काम न हो सका। एक ही चौक में 9 खंबे, कोई खंबा भी हटाया न जा सका। शहरियों ने मंसूबे की तकमील की अपील कर दी। दूसरी जानिब दज्जी चौक में लगे दर्जनों मीटर्स भी शहरियों के लिए मसाइल पैदा करने लगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, छंग। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म के नाम से मंसूब शहबाज शरीफ पार्क इंतजामिया की सितम ज़रफ़ी का गवाह बन गया। जगह जगह कूड़े के ढेर, टूटे वॉशरूम्स, बंद कैंटीनें और नाकारा लाइटें ख्यालात के दुखड़े सुनाने लगी। शहरियों ने वारदात के डर से रुख करना ही छोड़ दिया। तफसीलात अली हैदर भुट्टा की रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ पार्क गुलाम मोहम्मदाबाद की हालत अरसा दराज से गैर हो चुकी। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। पार्क में मौजूद कंटीन बंद, वॉशरूम टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में रात होते ही अंधेरों का राज नजर आने लगा। शहरियों का कहना है कि दिन के औकात में पार्क आवारा जानवरों की हमाजगा, जबकि रात में लाइट्स बंद रहने से यहाँ मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। शहरी वारदात के डर से पार्क में जाने से कतराने लगे। 6-7 महीने ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਸੈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਪਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਇਤਨੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, आंदे आके बह जाते चले जाते। पार्क की अबतर सूरत हाल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इंतजामिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अली हैदर भुट्टा, सिटी 41, फैसलाबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जामिया सल्फिया आमद तकरीब तकसीम इनामात और इसनाद में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते कहा कि मुआशरे में बर्दाश्त की कमी हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं उमर रांझा की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जामिया सल्फिया में तकसीम इनामात तो इसनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था जामिया सल्फिया की लाइब्रेरी से अंदाजा होता है किस कदर इल्म बांटा जा रहा है। लाइब्रेरी किसी भी कौम की जामन होती है। जामिया सल्फिया एक उम्दा काम पर गामजन है, जिसे देखकर दिल खुश हुआ। मैंने आज देखा है कि जो एक बड़ी अजीमुल शान लाइब्रेरी, बहुत अलग कुतुब खाना, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम की
तरक्की की ज़ामिन एक चीज़ हो सकती है वो उसकी लाइब्रेरीज हैं। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मुल्क पर स्टेट के हुक्मरान का हक होना चाहिए। इख्तिलाफ राय के नाम पर किसी का घर नहीं जलाया जा सकता। सियासत अफरा तफरी और इंतशार का नाम नहीं। नून लीग ने नौजवानों को बेपनाह तरक्की के मौके फराहम किए। इस वायलेंस पे, इस वेपनरी के कंट्रोल पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ स्टेट का हक है। अगर कोई और छीनेगा ये हक तो वो दहशतगर्दी होगी, वो तखरीबकारी होगी, वो अफरा तफरी होगी, वो अनारकी होगी, और स्टेट को ये राइट अपने पास रखना चाहिए। इसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं हो सकता। दुआ गो हैं जमे सल्फिया इस तरह दीन और दुनिया की खिदमत करता रहे। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ उमर अंजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी चिन्योट फैसलाबाद कैंपस में 8वां सालाना कन्वोकेशन मुनक्किद किया गया। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 369 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। पोजीशन होल्डर्स को मेडल से नवाजा गया। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट। प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद मारूफ ने तकरीब की सदारत की और मिस्टर बशीर जान मोहम्मद, चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, चेयरमैन वेस्टबरी ग्रुप ऑफ कंपनीज डालडा फूड्स और वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नोट कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद सरफराज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, दीगर फैकल्टी मेंबरान, तलबा व तालबात और वालिदैन ने कसीर तादाद में कॉन्वोकेशन में शिरकत की। कॉन्वोकेशन में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 369 तलबा व तालबात ने डिग्रियां हासिल की। 350 तलबा ने ग्रेजुएशन, 17 ने MS, MBA और 2 ने PhD की डिग्रियां वसूल की। पोजीशन होल्डर्स तलबा व तालबात में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल तकसीम किए गए। डिग्री की है और मुख्तलिफ तालबात है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BBA में डिग्रीज की हैं, जिनको आज इनामात भी मिले हैं, मेडल्स भी मिले हैं और डिग्रीज भी मिल रही हैं। तो 4 साल जो सबने मेहनत की है, सबने पढ़ा है माँ बाप की दुआओं से, वो सब आज उनको नवाजा जा रहा है इस चीज़ से, तो हम सब बहुत खुश हैं। डायरेक्टर कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद सरफराज ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इदारे में जारी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों से आगाह किया। शुरकाने जामिया की शानदार कारकर्दगी और खूबसूरती और पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर डायरेक्टर कैंपस, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी स्टाफ की खिदमात को सराहा और मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर मेहमानाने खुसूसी ने भी डिग्रियां लेने वाले तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।